Today we will talk about the some points which are not that much important from the exam point of view, but these are the points which build your concept of the photosynthesis, or you can say these are the points which increase your understanding about the photosynthesis. And definitely these are the points which increase your confidence about this point, about this chapter. So let us start with the first concept, that is the quantum yield and quantum requirement. So what is the quantum requirement? Quantum requirement means what number of a quanta or number of a photon required to release or to evolve or to produce the one oxygen molecule. Okay, so what is quantum requirement? कितने photon require रहते हैं to produce the one oxygen molecule by the photosynthetic unit. So हम जानते हैं कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर. ये भी मैंने ऑलरेडी बोला था. सपोज दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ये हैं पिगमेंट. ओके, पिगमेंट है बेटा. सो दे एब्सॉर्ब द लाइट. ओके, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. फोटोन लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं. इसका मतलब क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा? फोटोन ऑब्जर्व करते हैं एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फोटोन इज सेड टू बी क्वांटम. तो आप फोटोन बोल सकते हैं या क्वांटा बोल सकते हैं या क्वांटम बोल सकते हैं. सो whenever these they absorb the light, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. और फोटोसिंथेसिस में एक स्टेप होती है, दैट इज द ऑक्सीजन इवोल्यूशन. Okay, in the case of oxygenic photosynthetic organism, okay, rate of photosynthesis is measured in the term of oxygen evolution. Okay, rate of photosynthesis किस term में measure की जाती है बेटा? O2 evolution. ये किस केस में? In the case of oxygenic photosynthetic organism. So यहाँ पे quantum requirement क्या है? Number of a what? Number of a photon, or you can say quantum required to evolve, or you can say release, or you can say produce one O2 molecule. So how many photons should be absorbed to release for one oxygen molecule, for one O2 molecule? कितने photon absorb होना चाहिए बेटा to release the one oxygen molecule? That is the 8 photon. Okay, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है. This was proved by the scientist Emerson. Okay, इमर्सन नाम के साइंटिस्ट है. उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया है कि 8 photon should be absorbed by the photosynthetic unit to release the one oxygen molecule, and this is said to be what? Quantum requirement. 8 photon बोल सकते हैं, 8 या 8 क्वांटा बोल सकते हैं बेटा. ओके, सो दिस इज द वन. लेकिन in a complete photosynthesis, okay, at the end of a photosynthesis, how many oxygens are released? हम जानते हैं ओवरऑल रिएक्शन हमने फोटोसिंथेसिस की देखी है बेटा. क्या देखी है? 6CO2 plus 12H2O. ओके, ऐसा देखा है ना, 6CO2 plus 12H2O. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या तैयार होता है? 6H12O6 प्लस 6O2 इवॉल्व होते हैं प्लस H2O. ऐसा दिखा है. तो 6O2 आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सो इन ओवरऑल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? हम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 8 फोटोन लग रहे हैं, तो फॉर 6O2 मॉलिक्यूल कितने लगेंगे बेटा? 6 into 8 is equal to 48 photons are required. 48 photons are required. Therefore, you can say क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि what is the photon requirement for the formation of one glucose molecule? Okay, therefore for formation of one glucose molecule, glucose formation, how many photons are required? Of course
6O2 मॉलिक्यूल कब रिलीज होते हैं? 1 ग्लूकोज जब तैयार होता है तब। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 48 फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दिस इज द क्वांटम रिक्वायरमेंट। इसको क्या कहा जाता है? क्वांटम रिक्वायरमेंट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड, ओके। क्वांटम यील्ड, अभी मैंने बोला यहाँ पे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ O2 इवोल्यूशन। ओके, O2 इवोल्यूशन पर फोटोन एब्सॉर्ब्ड, पर फोटोन एब्सॉर्ब। इसका मतलब क्या? इसका रिवर्स जो होगा, क्वांटम रिक्वायरमेंट का जो रिवर्स है, दैट इज द क्वांटम यील्ड। और कैसे? क्वांटम यील्ड का जो रिवर्स है, दैट इज द क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी, यील्ड का मतलब प्रोडक्टिविटी। सो ये जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ अ क्वांटम यील्ड। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ अ क्वांटम यील्ड। व्हाट इज क्वांटम यील्ड? ओके, व्हाट इज क्वांटम यील्ड? number of oxygen evolved, number of oxygen evolved per photon absorbed. ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ फोटोन, सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन O2 इवॉल्व। मैंने ऑलरेडी बोला है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड इन द टर्म ऑफ O2 इवोल्यूशन। सो इसलिए क्वांटम यील्ड जो है इट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन किसमें मेजर की जाती है बेटा? क्वांटम यील्ड में। सो व्हाट इज क्वांटम यील्ड? क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ O2 इवॉल्व्ड पर फोटोन और पर लाइट ऑफ अ फोटोन इज एब्सॉर्ब, पर फोटोन एब्सॉर्ब और पर क्वांटम एब्सॉर्ब। ओके, एक क्वांटम एब्सॉर्ब होने के बाद कितने फोटोन, एक फोटोन एब्सॉर्ब होने के बाद ओके कितने ऑक्सीजन इवॉल्व होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? क्वांटम यील्ड। सो लेट अस understand what let us calculate the quantum yield of the photosynthesis. Quantum yield for the photosynthesis, Q yield is equal to क्या आएगा? number of O2 evolved or released or produced per number of पूरे ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल रहे हैं हम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ क्वांटम यील्ड, मींस दैट इज इन द टर्म ऑफ O2 इवॉल्व्ड पर फोटोन एब्सॉर्ब। तो नंबर ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब। सो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में कितने ऑक्सीजन इवॉल्व होते हैं? 6O2 मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं। एंड 6O2 मॉलिक्यूल इवॉल्व होने के लिए कितने फोटॉन्स लगते हैं बेटा? 48 फोटॉन्स लगते हैं। ओके, 48 फोटॉन एब्सॉर्ब होते हैं। तो क्या आएगा? 6 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 0.125। ओके, लेस देन 1 जो है वो क्या है बेटा? क्वांटम यील्ड है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, आपको ये याद रखना है व्हाट इज द क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? 0.125, ये याद रखना है। ओके, अगर इसको परसेंटेज में करना है तो 12.5%। ओके, इट इज द क्वांटम यील्ड। ओके, इसको क्या कहा जाता है? क्वांटम यील्ड और कैन से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, दिस इज अबाउट द क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड। इसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ पिगमेंट। रोल ऑफ पिगमेंट ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने फोटोसिंथेटिक यूनिट कहाँ है, व्हाट इज फोटोसिस्टम, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ रिएक्शन सेंटर, वो हम देखेंगे। Now let us see role of pigment. पिगमेंट, हाँ, हायर प्लांट में कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है हम जानते हैं बेटा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में आएगा कैरोटीन एंड xanthophyll। सो यहाँ पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए, CHLA मीन्स क्लोरो, CHL का मतलब क्लोरोफिल ए. ओके, क्लोरोफिल ए इट ऑकर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म्स. ओके, वेरियस फॉर्म्स है डिपेंडिंग अपॉन द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा, और यू कैन से कौन से वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं, या एब्सॉर्प्शन पिक कौन से वेवलेंथ के ऊपर आता है, उसके उस बेसिस पे क्लोरोफिल ए के अलग अलग फॉर्म्स है बेटा, वेरियस फॉर्म्स. ओके, तो यहाँ पे कौन से फॉर्म है मैं दिख रही हूँ. सपोज दिस इज क्लोरोफिल ए विच शोज एब्सॉर्प्शन पिक, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा, एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा इन अ नैनोमीटर. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लोरोफिल ए विच हैज एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम एट 430 नैनोमीटर. ओके, हमने रेंज देखी है ना वेवलेंथ की, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज जब हम जानते हैं 390 टू 730 और कैसे 700 बोल सकते हैं. ओके, 730 बोल सकते हैं या 700. यहाँ पे ध्यान देना, अभी 390 तो यहाँ पे 400 है, देन 500, देन 600 ऐसा. ओके, यहाँ पे कौन सा रीजन है बेटा, वॉयलेट विबजियोर, आप जानते हैं VIBGYO एंड R. सो इस रीजन में ओके अबाउ 600 जो भी यहाँ पे 650 के रीजन में कौन सी लाइट है, रेड लाइट है, और 400 या 450 के रेंज में कौन सी लाइट है, तो ब्लू रीजन है. आपको ये थोड़ा सा फोकस करना है. दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है. विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब समझ सकते हो. ओके, स्पेक्ट्रम है. एंड दिस इज वेवलेंथ इन अ व्हाट, दिस इज द लैम्बडा इन अ व्हाट, नैनोमीटर. ये क्या है बेटा, लैम्बडा इन अ नैनोमीटर. तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए के अलग अलग टाइप्स है. मैंने यहाँ पे आपको क्लोरोफिल ए के बोला है, क्लोरोफिल के नहीं खाली बोला है. ऑलरेडी हम जानते हैं क्लोरोफिल हैज अ डिफरेंट टाइप्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन C, D, E, F ऐसा बोला है मैंने. लेकिन अभी मैं किसको फोकस कर रही हूँ, क्लोरोफिल ए हैज अ वेरियस फॉर्म्स, ओके, वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा. एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा मीन्स कौन से पिक पे, आई मीन कौन से वेवलेंथ पे, दैट शोज द एब्सॉर्प्शन पिक. ओके, एब्सॉर्प्शन पिक कौन से वेवलेंथ पे आता है, सपोज दिस इज द 430, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया क्लोरोफिल ए का, दैट शोज द मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन एट अ व्हाट, 430. ओके, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन एट अ 430 वेवलेंथ. ओके, सो दिस इज द वन टाइप, एक टाइप है क्लोरोफिल ए का. वैसे ही क्लोरोफिल ए यू कैन से 650 अलग अलग है. 630 है, 650 है, देन 673 है, 653 भी है. ओके, 670 है. दीज आर द व्हाट, वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट, पिगमेंट. और एक यहाँ पे जो आपको 660 है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दैट इज द व्हाट, 680 एंड 700. दीज आर द टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए. किसके टाइप है बेटा, क्लोरोफिल ए के टाइप है. दीज आर द वेरियस फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए. ओके, अभी ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, समझ में आया. ओके, दिस क्लोरोफिल ए ऑफ 700, इसका मतलब क्या, दिस क्लोरोफिल ए it shows the maximum absorption of light of a wavelength 700 nanometer. This is the chlorophyll A which has a absorption maxima, इसका मतलब absorption peak at what, 680 nanometer. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लोरोफिल ए. इसमें से आपको ये जो है अलग अलग मैंने यहाँ पे ऊपर जो लिखा है, दीज आर द एसेसरी फॉर्म ऑफ अ क्लोरोफिल ए. ये क्या काम करते हैं, एसेसरी फॉर्म्स है. ओके, दे एक्ट्स एज एंटेना का काम करते हैं, या एसेसरी फॉर्म है. इसका मतलब क्या, दे एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर. ओके, ये क्या करते हैं, दे एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर.
रिएक्शन सेंटर क्या है? अभी हम दो टाइप के पिगमेंट शायद इससे पहले भी मैंने बोला है आपको, लेकिन इन डिटेल में मैं आपको ये पूरा पढ़ाने वाली हूँ. सो व्हाट इज द रिएक्शन सेंटर? रिएक्शन सेंटर, इट इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल विच हैज अ एबिलिटी टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. ओके, ये रिएक्शन सेंटर का मतलब क्या? ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो क्या कर सकता है बेटा? इट एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. तो इसमें से ये क्लोरोफिल ए of a 680 nanometer and chlorophyll B which has chlorophyll A of a 700 nanometer. Okay, these two acts as a what? इनका रोल क्या है? They acts as a what? Reaction center. Reaction center. Okay. रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं कौन? क्लोरोफिल ए ऑफ 680 नैनोमीटर एंड क्लोरोफिल ए ऑफ 700 नैनोमीटर. बाकी की जो क्लोरोफिल ए है, बाकी के क्लोरोफिल के जो फॉर्म है, दैट एक्ट्स एज एसेसरी पिगमेंट. वो एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं, या एसेसरी फॉर्म कहेंगे हम, एसेसरी पिगमेंट that acts as antenna, they form the antenna complex, accessory pigment कहेंगे. So ये accessory क्यों कहा है? Because they absorb the light of a different wavelength other than the what? Reaction center. लाइट एब्सॉर्ब करते हैं अलग वेवलेंथ की और ट्रांसफर करते हैं किसको? रिएक्शन सेंटर को. ओके, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एसेसरी पिगमेंट कहा जाता है. ओके, तो ये हो गया. यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल ए कहा है, बाकी की भी और क्लोरोफिल यहाँ पे हो सकते हैं. ओके, रिएक्शन सेंटर कहाँ पे होगा? रिएक्शन सेंटर कौन यहाँ पे एब्सॉर्ब लाइट करता है बेटा? 680 और दूसरा है 700. दीज आर द क्लोरोफिल ए ऑफ 680 नैनोमीटर एंड दूसरा है क्या? 700 नैनोमीटर का क्लोरोफिल ए. तो यहाँ पे कौन से रीजन की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं रिएक्शन सेंटर? रेड लाइट की, रेड रीजन की लाइट. बाकी एसेसरी पिगमेंट कहाँ पे कौन सी लाइट एब्सॉर्ब कर रहे हैं? ब्लू रीजन की, और अदर रेड रीजन की भी हो सकती है, रेड रीजन की भी हो सकती है. तो इसका मतलब क्या? रिएक्शन सेंटर ही क्या करता है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में. लेकिन रिएक्शन सेंटर एब्सॉर्ब ओनली स्मॉल रीजन ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम. स्मॉल रीजन का ही जो लाइट है, ओके, स्मॉल रीजन का ही जो लाइट है विजिबल स्पेक्ट्रम का, वो कौन एब्सॉर्ब करते हैं बेटा? रिएक्शन सेंटर. बट ये एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं? दे एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, डिफरेंट रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एंड ट्रांसफर टू द व्हाट? रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं. इसका मतलब क्या करते हैं? ये इसकी एसेसरी पिगमेंट की वजह से ही, ओके, जो लाइट कौन एब्सॉर्ब नहीं कर पाता? रिएक्शन सेंटर एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, वो भी लाइट क्या हो सकती है? यूटिलाइज होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस. इसका मतलब क्या? एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं? दे ब्रॉडन द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. मैंने क्या कहा? एसेसरी पिगमेंट दे ब्रॉडन द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट का जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, मैंने एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा है, उसको ब्रॉड करते हैं बेटा. ओके, उसकी क्या वाइडर करते हैं या ब्रॉड करते हैं. ओके, ये किसकी वजह से है बेटा? एसेसरी पिगमेंट की वजह से. ओके, तो ये थोड़ा सा आपको क्लोरोफिल ए के बारे में समझ में आया होगा. अभी दूसरे एसेसरी पिगमेंट देखते हैं. ओके, रिएक्शन सेंटर कौन है बेटा? क्लोरोफिल ए 680 और क्लोरोफिल ए 700. रिएक्शन सेंटर किसको कहेंगे? द पिगमेंट और कैसे द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल which has the ability to convert the light energy into the chemical energy. ओके, इसके बाद एसेसरी पिगमेंट. एसेसरी पिगमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है बेटा? यहाँ पे क्लोरोफिल ए के फॉर्म्स हैं. कौन से फॉर्म है आप जानते हैं? क्लोरोफिल ए हो सकता है, और क्या यहाँ पे हो सकता है? दैट इज द क्लोरोफिल बी, ये भी एसेसरी पिगमेंट है, एंड कैरोटेनॉइड्स. दीज आर द एसेसरी पिगमेंट.
ओके, ये क्या करते हैं? these are the pigment which absorb the light. क्या करते हैं? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ओके, they absorb light of a different wavelength. Different wavelength का मतलब other than reaction center. ओके, रिएक्शन सेंटर जो एब्सॉर्ब करता है लाइट, वो वेवलेंथ की लाइट छोड़ के ये दूसरे वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफर टू किसको? रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करते हैं. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दीज एक्सेसरी पिगमेंट? ये हम यहाँ पे लिखूंगी, रोल बोल रही हूँ, रोल ऑफ अ एक्सेसरी पिगमेंट. ओके, सो रिएक्शन सेंटर एक कंसेप्ट समझ में आया. दूसरा है अभी एक्सेसरी पिगमेंट के बारे में, वो हम फोकस कर रहे हैं. एक्सेसरी पिगमेंट क्या है? कौन से है एक्सेसरी पिगमेंट? समझ में आया. there are few forms, I mean there are different form of a chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoid. They all together are said to be accessory pigment. Why they are said to be accessory pigment? Because they absorb the light of a different wavelength. Okay, or they absorb the light of a different region of a visible spectrum other than the reaction center. इसलिए ये क्या करते हैं बेटा? They wider the range of absorption of a light of a visible spectrum. ओके, विजिबल स्पेक्ट्रम का जो एब्सॉर्प्शन का जो रेंज है उसको ब्रॉड करते हैं बेटा. ओके, दे यू कैन से हम और इसको कैसे लिख सकते हैं? दे ब्रॉडन द व्हाट? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, याद रखना, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ विजिबल लाइट. एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ विजिबल लाइट. ऐसा क्यों कहा है? समझ में आया? ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्सेसरी पिगमेंट कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ अ वेवलेंथ, ओके, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वेवलेंथ which light of a wavelength absorbed by the reaction center. ओके, सो ये दूसरा एक रोल है. ओके, तो दूसरा रोल मैं लिख रही हूँ एक्सेसरी पिगमेंट का. दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन. ओके, प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन. दिस इज द फर्स्ट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, एक्सेसरी पिगमेंट का दूसरा रोल, protect the chlorophyll A, और you can say reaction center बोल सकते हैं, chlorophyll A और reaction center from photo oxidation. ओके, ये हमें थोड़ा सा लर्न करना है व्हाट इज मीन बाय फोटो ऑक्सीडेशन. ओके, यस, ये रोल समझने के लिए इससे पहले ये पहला तो रोल तो समझ में आया. अगेन द एक्सेसरी पिगमेंट हेल्प टू एब्सॉर्ब द लाइट मोर इफिशियंटली. ओके, एक्सेसरी पिगमेंट क्या करते हैं? दे हेल्प टू एब्सॉर्ब द लाइट मोर इफिशियंटली टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. ये आपको याद रखना है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटो ऑक्सीडेशन. नाउ लेट अस सी फोटो ऑक्सीडेशन. फोटो का मतलब लाइट, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो फोटो ऑक्सीडेशन किसका होता है? रिएक्शन सेंटर का हो सकता है. ओके, और कब होता है बेटा? ये फोटो ऑक्सीडेशन इट इज मेनली ड्यू टू द सोलराइजेशन. व्हाट? सोलराइजेशन. What is solarization? Okay, what is solarization? Whenever a leaf receives light of a very high intensity, then there is a destruction of a chlorophyll A molecule takes place, and that phenomena is said to be solarization.
destruction of a chlorophyll A due to the absorption of a high intensity light. That is said to be solarization and it is the reason of a photooxidation. ये क्या है, रीजन है फोटोऑक्सीडेशन का. लेकिन नेचुरली अगर लीफ में देखा गया तो वो ये प्रोसेस अवॉइड होती है ड्यू टू द एसेसरी पिगमेंट. एसेसरी पिगमेंट प्रिवेंट करते हैं बेटा क्या, फोटोऑक्सीडेशन का. फोटोऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए और रिएक्शन सेंटर का. लीफ रिसीव्स व्हाट, हाई intensity of a light or light of a intensity above or greater than the optimum light intensity. इसका मतलब the light which is required, the minimum amount of light required for the photosynthesis, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम. ओके, लेकिन ऑप्टिमम से बहुत ज्यादा अगर लाइट लीफ के ऊपर रिसीव हो रहा है तो वहां पे क्या चांसेस है बेटा, फोटो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस है. बट ये अवॉइड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट और कैरोटिनॉइड या क्लोरोफिल बी की वजह से. वो कैसे होता है, ध्यान देना यहाँ पे. और यहाँ पे और एक कंसेप्ट हमें लर्न करना है, हाउ द एसेसरी पिगमेंट ट्रांसफर देयर एब्सॉर्ब्ड एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर. ओके, वो भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये रिएक्शन सेंटर में P680 लिखा है, P680 लिखा है मैंने. ये 680 इंडिकेट क्या करता है, रिएक्शन सेंटर में कौन सा क्लोरोफिल ए है बेटा, क्लोरोफिल ए विच शोज द एब्सॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन एट अ 680 नैनोमीटर. ओके, तो ये रिएक्शन सेंटर वाला. और यहाँ पे क्लोरोफिल ए ये है एसेसरी पिगमेंट, ये एसेसरी है. एसेसरी, ये सब क्या है, एसेसरी है. ये क्लोरोफिल ए कौन सा है बेटा, एसेसरी क्लोरोफिल ए. अभी मैंने बोला है आपको कि अदर देन द रिएक्शन सेंटर, द क्लोरोफिल ए विच फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर और विच एक्ट्स एज अ रिएक्शन सेंटर, वो छोड़ के जो दूसरे क्लोरोफिल है उनको क्या कहा जाता है, एसेसरी पिगमेंट या एसेसरी क्लोरोफॉर्म ए, क्लोरोफिल ए कहेंगे. यहाँ पे अभी ध्यान देना थोड़े, हमारा वो स्पेक्ट्रम का ये चार्ट निकालते हैं. स्पेक्ट्रम में ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने देखा है. एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम याद आता है ना आपको, यहाँ पे 400 लिखा था, 500 एंड 600 और यहाँ इस तरफ है 700. ओके, दिस इज द वेवलेंथ इन एंड व्हाट नैनोमीटर. वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, कहाँ से कहाँ, 400 to 700. ओके, और यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या, एनर्जी डिक्रीज हो रही है. रेड रीजन में जो लाइट रहेगी वो उसमें एनर्जी कैसे रहेगी बेटा, लेस रहेगी. और ब्लू और वायलेट रीजन में जो लाइट रहेगी वहां पे एनर्जी कैसे होगी, ज्यादा होगी. ये याद रखना है. तो कैरोटिनॉइड कौन से रीजन का लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, दे absorb the light mainly in the region of blue and green. इसका मतलब कैरोटिनॉइड कौन से वेवलेंथ की लाइट, कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, दे एब्सॉर्ब द शॉर्टर वेवलेंथ. शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, ये ज्यादा ऐसी वेवलेंथ को, ऐसी लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर है बट एनर्जी कंटेंट कैसा है, ज्यादा है. वैसे ही क्लोरोफिल बी का एंड अदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का भी. ओके, लेकिन रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करता है बेटा, दे एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ ईदर 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर. और मैंने बोला है एक ही रिएक्शन में दोनों नहीं रहते, एक ही रिएक्शन सेंटर में दोनों नहीं रहते. एक तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए 680 वाला रहेगा, नहीं तो और रिएक्शन सेंटर में कौन सा रहेगा, क्लोरोफिल ए ऑफ 700 नैनोमीटर वाला रहेगा. ओके, इसका मतलब ये दोनों भी कौन सी लाइट एब्सॉर्ब कर रहे हैं बेटा, दे एब्सॉर्ब द लाइट मेनली इन द रेड रीजन. और रेड रीजन में जो लाइट रहती है, ओके, वो कौन सी रहेगी, इट इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एंड हैविंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर रहेगा, इसलिए तो मैंने यहाँ पे ऐसा एरो निकाला है, ध्यान देना यहाँ पे. ओके, ऐसे हम एरो कैसे दिखाया है, ध्यान देना. ओके, सो यहाँ पे इधर ये लाइन क्या इंडिकेट करती है, वेवलेंथ इंडिकेट करती है. और ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, एनर्जी ग्रेडियंट इंडिकेट कर रही है. ओके, एनर्जी ग्रेडियंट इंडिकेट कर रही है. तो यहाँ पे ध्यान देना. ओके, अगर लैम्बडा वेवलेंथ अगर कम है
तो एनर्जी कैसी रहेगी बेटा, एनर्जी ज्यादा रहेगी। एज वी नो दैट देयर इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन और इनवर्सली रिलेशन बिटवीन द लैम्बडा और वेवलेंथ एंड द एनर्जी। शॉर्टर वेवलेंथ हैव अ ग्रेटर एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आपको याद रखना है। तो क्लोरोफिल ए, ये जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या एब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला, इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी वाला लाइट यहाँ पे नहीं गिरना चाहिए। तो वो कौन एब्सॉर्ब करता है, दैट इज गेट एब्सॉर्ब बाय द कैरोटिनॉइड एंड अदर एसेसरी पिगमेंट। ओके, ये कौन सा लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, दे एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड ग्रेटर एनर्जी। ओके, वाइल तो ये एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ओके, सपोज ये कैरोटिनॉइड ने लाइट एब्सॉर्ब की है तो क्या होता है, या क्लोरोफिल ए बी ने एब्सॉर्ब किया है तो क्या होता है। सपोज दीज आर द कैरोटिनॉइड, ये क्या है कैरोटिनॉइड, सपोज ये है कैरोटिनॉइड। ओके, और यहाँ पे मैंने दिखाया ये सपोज दीज आर द क्लोरोफिल बी, और यहाँ पे है रिएक्शन सेंटर, दिस इज द रिएक्शन सेंटर। ओके, रिएक्शन सेंटर कौन सा है, 680 का, या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ अ 680 बना रहा है रिएक्शन सेंटर। ओके, इसलिए P680 ऐसे लिखा है मैंने। अभी ध्यान देना, whenever the carotenoid and chlorophyll B absorb the light of different wavelength other than the reaction center, then that absorbed light is transferred to the chlorophyll A by the process of resonance. कौन सी मैकेनिज्म से ट्रांसफर करते हैं बेटा, एसेसरी पिगमेंट ट्रांसफर एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी into reaction center, RC means reaction center, by resonance मैकेनिज्म कौन सी है, रेजोनेंस। ये वर्ड आपको याद रखना है। रेजोनेंस का मतलब, अभी ध्यान देना, ये क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब कर सकता है बेटा, 680 वाला, इन दिस केस 680 वाला कर सकता है। ओके, और कैरोटिनॉइड कौन से कर रहे हैं, ब्लू रीजन में कर रहे हैं, इसका मतलब वेवलेंथ यहाँ पे क्या रहेगी, 430 या 450 की रेंज में रहेगा। ओके, या 500 के रेंज में रहेगा। तो ये यहाँ पे तो लैम्बडा शॉर्टर है और यहाँ पे लैम्बडा क्या ग्रेटर है। तो क्या होता है, कैरोटिनॉइड या क्लोरोफिल बी के बारे में ध्यान देना। कैरोटिनॉइड क्या करते हैं, दे एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, एब्सॉर्ब करते हैं बेटा, बट वो क्या करते हैं, जब भी एब्सॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को। लेकिन ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ओके, ट्रांसफर्ड एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब बाय द कैरोटिनॉइड, इट इज अगेन ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ही ये लाइट एनर्जी है वो ट्रांसफर की जाती है किसको, क्लोरोफिल ए को। सपोज यहाँ पे ध्यान देना, अभी यहाँ पे है कैरोटिनॉइड, अगेन क्लोरोफिल बी, और यहाँ पे दिखा रही हूँ क्लोरोफिल ए, अदर क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे है रिएक्शन सेंटर P680। ओके, तो यहाँ पे जब भी लाइट गिरती है तो यहाँ पे ये जो कैरोटिनॉइड है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और इसकी एक्साइटेड एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाती है नियर दूसरे पिगमेंट, आई मीन नियर अबाउट पिगमेंट को, इस तरह, और वो ट्रांसफर करता है एक्साइटेड एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए, एंड अल्टीमेटली द एक्साइटेड एनर्जी कम रीच अप टू द व्हाट 680 क्लोरोफिल ए, दैट इज द रिएक्शन सेंटर के पास आती है। हाँ, आपको रेजोनेंस का मतलब समझना है, ध्यान देना। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द कैरोटिनॉइड और एसेसरी पिगमेंट, ओके, टू द रिएक्शन सेंटर। ट्रांसफर हो रही है absorb light energy by the carotenoid or other accessory pigment to the reaction center। किस फॉर्म में बेटा, अगेन एनर्जी के फॉर्म में, बट एनर्जी के फॉर्म में मीन्स कैसी, यहाँ उन्होंने तो बहुत ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब की है ना,
ऑफ कोर्स शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके पास है। ओके, तो वो एनर्जी ये अगर डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ तो वो क्या ये दिस क्लोरोफिल ए विल नॉट बी एब्सॉर्ब दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पीक कहाँ पे है बेटा 680 नैनोमीटर में। इसका मतलब दे कैन एब्सॉर्ब द लाइट ऑफ लाइट एनर्जी यू कैन से स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ी अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी नहीं एब्सॉर्ब कर सकते, लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। तो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड क्या करते हैं, दे एब्सॉर्ब द लाइट एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is get absorbed by the carotenoid that release in the form of heat। हीट के फॉर्म में क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। एंड जो भी बाकी की जो लाइट है, लाइट एनर्जी है, वो ट्रांसफर की जाती है क्लोरोफिल ए को। ओके, इसका मतलब कैरोटीनॉइड ट्रांसफर द एब्सॉर्ब लाइट टू द व्हाट हीट, ध्यान देना, कैरोटीनॉइड ट्रांसफर द लाइट टू द व्हाट रिएक्शन सेंटर बाय इन द फॉर्म ऑफ अगेन एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है, बट बाय मैचिंग द वेवलेंथ, वेवलेंथ को मैच करके ये क्या ट्रांसफर किया जाता है। ओके, उसी को हम क्या कहा जाता है, रेजोनेंस। अगर हीट के फॉर्म में यहाँ पे लाइट हीट के फॉर्म में कुछ अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है, तभी वो क्या हो सकता है बेटा, मैच हो सकता है किसका, वेवलेंथ का। किसकी वेवलेंथ का, the wavelength which is get absorbed by the chlorophyll A and the wavelength which is get transported from the what carotenoid, वो मैच हो सकता है। इसी को कहा जाता है क्या, रेजोनेंस। आपको फिलहाल तो इतना ही याद रखना है कि एक्सेसरी पिगमेंट कैसे ट्रांसफर करते हैं लाइट, एब्सॉर्ब लाइट को या लाइट एनर्जी को बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी बाय मैचिंग द वेवलेंथ, वेवलेंथ को मैच करके यहाँ पे क्या ट्रांसफर किया जाता है। कुछ अमाउंट में, कुछ जो ज्यादा लाइट है, सॉरी जो ज्यादा एनर्जी है, वो कुछ अमाउंट में हीट के फॉर्म में क्या रिलीज होती है। तो ये यहाँ से इस तरह क्या ट्रांसफर होता है बेटा। अभी देखते हैं फोटो एक्साइटेशन ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल ए।